welcome students again to RG classes. As we have discussed in earlier video the worksheet number 32 of class 10, which was based on metals and non-metals. That was a reactivity series of metals, reaction of metals with dilute acids, and also the reaction of metals with other metal salts. From there the video was becoming very large, so I have told you that in the next video we will discuss the question answers of the chapter, some practice questions. So the practice questions we will be discussing now, as demanded by my student, my valuable comment students who have given the comment and seen the video. So now I will be also giving you answers, discussing the answers with you. So here first question is from the practice. First you have to see the previous video, practice the worksheet, then the discussion of answers. See if you can answer yourselves, and you can also see this video to match your answers. Which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal? What is reactive metal means? The metal which is more reactive than hydrogen. Obviously, then I have told you the answer. So which gas will be produced? Hydrogen gas. Obviously the acids contain hydrogen gas, so hydrogen gas will be produced. I think you got the answer. Which gas will be produced? It will be hydrogen gas. Now come to the part, write the chemical reaction when zinc reacts with dilute HCl. So if you have seen the earlier video and the activity series, I think you have seen by now, so you can easily see know that by now you easily know that zinc metal is more reactive than hydrogen gas. From the reactivity series you can see that. So your reaction will be Zn zinc plus HCl, that will give you ZnCl2. Why ZnCl2? Because zinc is a divalent metal, it has two valency, so it will, chlorine is monovalent, one valency, and the gas formed will be hydrogen gas. Always write a balanced reaction. This is a gas, this is aqueous solution, so you can easily write HCl. Here the HCl, it is dilute HCl, and zinc is in solid form. So now you easily see the gas produced will be hydrogen gas, and the reaction will be ZnHCl. So now you have to balance the reaction. Chlorine here it is twice, so you can put a 2 here. Now I think your reaction is balanced. 1 zinc, 2 chlorine, and 2 hydrogens. So this is the reaction. You easily get this. This is the reaction. I hope you will be arriving at the same answer. You have also arrived at the same answer, I hope that. Okay, now we come to your next question. Second question, what happens when copper reacts with silver nitrate solution? That we have seen examples. In examples I will easily show you. When copper reacts with silver nitrate solution, so this is copper plus it is added to silver nitrate solution. So silver nitrate
it is aqueous solution. Solution it is given, so aqueous. Copper in solid form, let me write it again for you. I will write here copper solid, it is question number second. Copper solid plus silver nitrate, it is in solution form, so it will be written as aqueous. Arrow, what will happen, because copper you know is more reactive than silver. Silver and gold are last in the reactivity series, so copper is more reactive than silver. It will replace or displace silver from silver nitrate solution and it will form copper nitrate plus, then the silver is displaced, so silver metal will be outside. As silver does not react with, normally does not react, so it will be in its single form. So it is silver solid, silver I have written here silver in solid form. The copper nitrate will be in aqueous solution, others we have written. So now if we have to balance the reaction, here it will be 2 AgNO3, so it is 2. Copper is balanced, nitrate ion you can see 2 nitrogen same, so it is the reaction they are demanding from. The copper will replace silver from silver nitrate solution and will form copper nitrate and silver will be outside. सिल्वर को हम डिस्प्लेस कर देंगे, सिल्वर विल बी डिस्प्लेस्ड. नाउ नेक्स्ट इज ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट was kept in an iron pot. After few days the iron pot was found to have number of holes in it. कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को आयरन में रख दिया हमने, लोहे के एक बर्तन में रख दिया. कुछ दिनों बाद देखा कि लोहे का बर्तन जो है ये जादू नहीं है, साइंस है. जो लोहे का बर्तन है उसमें छोटे छोटे छेद हो गए. तो हमें बताना है कि इसमें क्या रिएक्शन हुई है. ये टेबल से कंफ्यूज ना हो, जो टेबल दिया हुआ है ये 4th क्वेश्चन का है. 3rd क्वेश्चन है यहाँ तक, सिर्फ जहाँ क्वेश्चन मार्क एंड होता है ये यहाँ तक 3rd क्वेश्चन है. और उसके बाद जो है 4th क्वेश्चन जो टेबल है वो 4th क्वेश्चन का है आपका. वो हम अभी देखेंगे कि 4th क्वेश्चन कैसे करना है. तो टेबल आपका 4th क्वेश्चन के लिए है. आपको 3rd क्वेश्चन में पूछा गया कॉपर सल्फेट को रखने से क्या हुआ, नंबर ऑफ होल्स उसमें क्यों आ गए. राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन टुक प्लेस. नॉर्मली तुम्हें पता है आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. तो आयरन कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जब रखोगे आयरन के पोर्ट के अंदर तो वो तो उसको हटाएगा ही हटाएगा कॉपर को. कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इट मीन्स एक्वस, ब्लू कलर का ही होता है. प्लस इसमें आपने डाला आयरन, आयरन ये डाल दिया आयरन. आयरन कैसे डल गया, आयरन पूरा बर्तन आयरन का था, आयरन सॉलिड फॉर्म में है, बर्तन बना हुआ है, पोर्ट है उसका आयरन का. ये बन गया आपके पास FeSO4. चलो आपके लिए और अच्छी तरह कर देते हैं हम, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कलर के लिए. आपको दिखाते हैं आयरन सल्फेट इन इट्स कलर. बोल रहे हैं ना कलर चेंज होता है. दिस इज़ आयरन सल्फेट, थोड़ा ग्रीनिश कलर बन जाएगा, इतना ग्रीन नहीं होगा. प्लस इसमें से निकलेगा आपका कॉपर. तो कॉपर का भी थोड़ा सा कलर देखें. अगर हम कॉपर का कलर देखना चाहें, कॉपर का कलर सबने देखा होगा. तो कॉपर का कलर थोड़ा सा ब्राउनिश कॉपर का कलर आएगा, रेडिश ब्राउन. अभी यहाँ पे कलर नहीं आ पा रहा, चलो कोई बात नहीं. आपको कॉपर का कलर पता है, घर में तांबे का बर्तन आप देख सकते हो. तो घर में आप तांबे के बर्तन देख सकते हो. चलिए कोई बात नहीं, आप इस कलर को अभी नहीं आपको दिख पा रहा है इसमें हमें. तो कॉपर आपका कलर आपको याद रखना है, कौन सा कलर होगा. हाँ जी, तो कॉपर आपका इसमें से
बाहर आ जाता है। इसीलिए जो है जो आयरन जो इसमें चला गया सोल्यूशन के अंदर, तो आयरन पोर्ट के अंदर वहाँ से होल्स हो गए। तो ये रिएक्शन में FeSO4 एक्वस होगा। तो आप आई होप जो स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि हमें थोड़ा आंसर भी समझा दीजिए, तो वो आंसर आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है इसी वर्कशीट में। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, उसमें आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें आपको ऊपर आयरन सल्फेट और ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो मैं इनको थोड़ा सा आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। आयरन सल्फेट मेटल ए के साथ नो रिएक्शन, कॉपर सल्फेट की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट का कुछ भी उसमें शो नहीं किया हुआ। सिमिलरली बी में इसमें दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, आयरन सल्फेट को ये डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर सल्फेट में कुछ भी नहीं दिया हुआ इसमें, और जिंक सल्फेट में नो रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट में कुछ भी नहीं दिया हुआ। ऐसी मेटल सी है कोई जो आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं, कॉपर सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ जिंक सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं, सिल्वर नाइट्रेट को ये रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। डी में है आयरन सल्फेट के साथ नो रिएक्शन, कॉपर सल्फेट के साथ नो रिएक्शन, जिंक सल्फेट के साथ नो रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट के साथ नो रिएक्शन। इससे आपको क्या शो होता है, ये आपको इसमें इसके आंसर्स बताने हैं। थोड़ा आई थिंक स्क्रीनशॉट में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं स्क्रीनशॉट और क्लियर आपको इसमें क्वेश्चन का आंसर्स का हमें दे देंगे हम शीट का। तो थोड़ा 2 मिनट आप इसमें बने रहिए वीडियो के साथ। तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन। यूज़ द टेबल अब टू आंसर द फॉलोइंग। तो ये आपको इसमें आंसर करने के लिए टेबल को यूज़ करना है कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। अभी आपको ये आंसर दिए जा रहे हैं। यूज़ द टेबल अब टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल ABCD। तो आपको ABCD जो मेटल हैं इनके बारे में आपको बताना है कि क्या क्या इसमें है। तो हम अभी बताएंगे इसके बारे में। देखिए आपको इसमें पूछा गया है कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, कौन सा कम रिएक्टिव मेटल है, ये आपको इसमें बताना है। तो अब आप देखिए इसको, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ये आपको बताना है विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब देखिए ये आयरन सल्फेट का कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, कॉपर को हटा रहा है, जिंक और सिल्वर के साथ कोई रिएक्शन दी नहीं हुई। यहाँ देखिए ये आयरन को भी, इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है आप खुद बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो आपको पता है इस सॉल्यूशन में सबसे ऊपर आता है जिंक सल्फेट। जिंक को हटाना सबसे मुश्किल है, उसके सल्फेट से, उससे कम आयरन, उससे कम कॉपर, उससे कम सिल्वर। तो हम इसी से कंपेयर करेंगे। जो आयरन को हटा देता है ये है बी, जो आयरन को हटा देता है, लेकिन आपका जिंक सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं है इसकी। तो हो सकता है जिंक सल्फेट ही हो, जिंक ही हो जो हमने डाला है मेटल। तो मेटल बी जो है वो आयरन सल्फेट को हटा सकता है। बात तो इसलिए सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल इसमें कौन सा हो गया, देखिए यहाँ ये जिंक सल्फेट को नहीं हटा पा रहा, ये नहीं हटा पा रहा, ये नहीं हटा पा रहा। जो यहाँ तो जिंक सल्फेट को तो कोई हटा ही नहीं पा रहा। तो जो ज़्यादा हटा सकता है वो है इसमें, ज़्यादा वो हटा रहा है जो, वो कौन सा है आपका बी, जो बहुत रिएक्टिव मेटल को भी हटा सकता है, बहुत रिएक्टिव मेटल को भी वो हटा रहा है। तो इसका मतलब क्या है आपका इसमें, इसका मतलब है कि मेटल
metal B is most reactive। कौन सा मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो गया? मेटल बी। ये आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आपका है इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, इसी क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसमें इसके बाद इसमें पूछा है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ़ बी इज़ एडेड टू ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जो चीज़ आयरन को हटा सकती है उसके सोल्यूशन से, तो वो कॉपर को तो ईजिली हटा देगी। लेट मी इसको हम रिमूव कर दें जो चीज़ें इसमें ये वाली हैं। तो अब देखिए ये मेटल बी मोस्ट रिएक्टिव है, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने पूछा है आपसे कि कौन से ऐसे हैं जो अगर बी को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो क्या होगा। सो क्या होगा? मेटल बी विल रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्योंकि आयरन को जब हटा दिया मेटल बी ने आयरन सल्फेट से, आपने उसमें टेबल में देखा, तो कॉपर को तो ईजिली हटा देगा क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और मेटल बी तो आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ईजिली वो कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हटा देगा। ये आपको समझ आ गया होगा कि ये आपका फर्स्ट का आंसर मेटल बी इज़ मोर रिएक्टिव। सेकंड का आंसर मेटल बी विल रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब इनको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव और फिर उससे भी कम रिएक्टिव। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? आप देखें आपका जो मेटल बी है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। आपको करना है इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें? सबसे पहले आएगा आपका मेटल बी। बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब बी से कम रिएक्टिव। आप फिर बनाएंगे अपना एरो, वो मार्क बनाएंगे, कम वाला जो मार्क होता है आपका निशान होता है वो आप बनाएंगे इसमें। तो इसके बाद आपके पास कौन सा आएगा? बी के बाद बी से कम रिएक्टिव जो होगा दैट विल बी बी। बी से कम रिएक्टिव आप इसमें देख सकते हैं पीछे, बी से कम रिएक्टिव है आपका जो डिस्प्लेस कर रहा है किसको? आयरन सल्फेट को बी डिस्प्लेस कर सकता है। कॉपर सल्फेट बी से कम रिएक्टिव था, कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर सकता है, जो वो फिर सेकंड पे आ जाएगा कि वो कॉपर सल्फेट को कर रहा है। तो बी के बाद ए के बाद देखिए और कौन सा है जो उसके बाद आपका सिल्वर नाइट्रेट को रिप्लेस करने वाला, जो सिल्वर क्योंकि कम रिएक्टिव है उसको रिप्लेस कर रहा है। बाकी सब में कोई रिएक्शन हो ही नहीं सकती क्योंकि वो कम रिएक्टिव है, सिल्वर नाइट्रेट वाला। और लास्ट है डी जो किसी को भी रिप्लेस नहीं कर रहा। तो बी, ए, फिर सी एंड देन टी। तो ये आपका आ गया इसमें बी, ए और सी एंड देन डी। ये है रिएक्टिविटी सीरीज़ में कि बी से कम ए से कम सी से कम डी। तो ये आपका थर्ड का आंसर हो गया। ये हो गया आपका थर्ड का आंसर बी, ए, सी, डी। सेकंड का आंसर, फर्स्ट का आंसर मेटल बी इज़ मोस्ट रिएक्टिव क्योंकि वो आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस कर रहा है। अगर जिंक को करता तो वो होता, जिंक को कोई नहीं कर पा रहा, आयरन को कर पा रहा है। सेकंड में आयरन होता है क्योंकि रिएक्टिव इन चारों में से तो आयरन को डिस्प्लेस करने वाला बी है तो वो मोस्ट रिएक्टिव है। मेटल बी विल रिप्लेस कॉपर क्योंकि बी जो है कॉपर से ज़्यादा आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव तो कॉपर से तो होगा ही होगा। अगर रिएक्शन दिखाते उसकी इसमें दिखा नहीं रखी तो वो कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देता। जब हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ में अरेंज किया तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पहले ही हमने देखा बी है, हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। बी से कम कौन सा है? बी से कम हमने देखा जो
कॉपर को हटा सकता है ए से कम है इसमें सी, जो सिल्वर को हटाया, सी से कम डी, जिसने किसको हटाया, किसी को भी नहीं, क्योंकि वो सबसे कम रिएक्टिव मेटल है। समझ गए आप? तो ये आपको दोबारा मैं लिख देता हूँ, मैं थोड़ी टेक्निकल, कोई बात नहीं, बी, ए, सी और डी। रीज़न आपको समझ आ गया होगा कि क्या रीज़न है उसका। तो अब आप इसको और बड़ा दिखा सकता हूँ मैं। तो कैसे अरेंज हो गए ये अरेंज हो गए आपके बी, ए, सी, डी। ओके, कैसे हुए हैं ये है आपका क्वेश्चन। अरेंज करना था, अरेंज कर दिया उनको बी, ए, सी, डी। क्यों, कैसे पता लगा? ये आपको पता लगता है कि यहाँ आपका डिस्प्लेस हो रहा है आयरन सल्फेट, जो कि इन में से सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट जिंक को तो कोई रिप्लेस कर ही नहीं रहा, आयरन को जो डिस्प्लेस कर रहे हैं। ओके, तो अब आपको ये आंसर समझ आ गए होंगे आई थिंक।